Welcome to the 21st episode of Weekly Takes. Today is October the 24th and we are only 10 days away from the presidential elections and the future of America or the future of the world. We all have different likings and we wish to see the world accordingly. We should not impose our thoughts on anyone but live happily together by agreeing to disagree. Only one person will be elected. World or America will not come to an end. Let's all hope for the best for America and the world. We'll start this episode with news of USA focused on elections 2020. We will discuss the various opinion polls and what they say about the mood of the electorate. Keeping in view the paucity of time, we'll skip international news in this episode. We will also talk about some little known but unknown facts about New York City, news of India, wherein we will have an update on Sushant Singh Rajput murder mystery. After all, where is the case heading? We'll talk about the history of Bihar, wherein we'll talk in detail about the loot and plunder of Bihar by its own elected leaders, the Lalu Rabri regime. Did they loot everything? And more importantly, do they deserve a second chance? And last but not the least, we'll talk about the Congress party. Does the party really believe in eradication of poverty, emancipation of women, secularism, internal democracy and all such catchy phrases? Or is it just talk and no walk the talk? I must thank you all for liking my program. More and more people are subscribing, and those of you who have not till now, press the subscribe button and also the bell icon to get informed about the next episode at the earliest. And if you think of participating in the debate, please do write a comment. Namaste, Sat Sri Akal, Adab. This is Jagjit bringing you the weekly takes from New York. Today morning when the mercury reads 16 degrees Celsius. Let's begin. Elections 2020. Early voting counts show a record level of civic participation before election day. At least 52.1 million people have voted nationwide, and there are still 10 days until election day. Now about the opinion polls. With less than 2 weeks to go until election day, it is a 3-point race. Democrat candidate Joe Biden now leads President Trump 49% to 46% among likely US voters, according to Rasmussen Report's weekly White House Watch survey. 2 weeks ago, Biden had a 12-point lead. A week ago, he was ahead by 8. This is the first time in a month that Biden's support has fallen below 50%, and now he has only a 3-point lead. On Thursday, we were witness to the second and final presidential debate. The winner, of course, were the people who were able to hear the candidates without interjections and inshallah. President Trump was forceful in driving home the issue of corruption involving Hunter Biden and the family, a news which has been blocked by the so-called unbiased democratic media. Biden attacked on the COVID issue, but Trump laid bare his track record of handling the H1N1 virus crisis, where everything the task force under Biden's leadership did was wrong. What saved America at that point of time was the non-lethal virus itself. Biden was again at a loss to admit that he would eliminate the use of oil and gas, thus probably losing voters in Pennsylvania. Moreover, people heard him lie on the issue of fracking. As a friend put it, Trump ate Biden's lunch. Let me be frank. America does not like lies and corruption by its leaders. As a C-SPAN caller strongly suggested Friday, that he is leaning towards voting for President Trump due to the lack of mainstream media coverage of the growing Hunter Biden controversy. On the other hand, liberal media complained that Facebook and Twitter did not do enough to block the news. An interesting outcome was a poll carried on Twitter by a CNN journalist, and
Surprisingly, Trump led Biden by 80.9% to 14.8% with 4.3% going to wins. Do not know whether this is the real picture for 3rd November, but it does not look good for the challenger. And on a lighter note, listen to Biden. Almost every time he starts, he says, "Here is the deal," as if he is habituated of being a dealer. But the question is, what kind of a deal? What do you think, America? Who is this big guy? Share your thoughts. And once again, I reiterate, America, before exercising your franchise, you must ponder on 3 factors. Number 1, what is good for USA? Number 2, what or who is good for your country? And number 3, who is more supportive and understanding of your cultural ethos? Vote early, but vote wisely. Moving over to some interesting facts about New York City. Did you know that New York City subway system, which opened to the public in 1904, is one of the largest public transportation systems in the world? Did you know that New York is home to the oldest continually running newspaper in the United States, the New York Post, which was established in 1803? Did you know that New York was the first state to require people to use license plate on vehicles? And to top it all, do you know that rats have taken over the streets of New York City, making the Big Apple one of the rattiest cities in the country? New York City is ranked 3rd in Orkin's list of the top 50 rattiest cities. Folks, if you know which cities are ranked the 1st and the 2nd, then share it with us and you will have a special mention in the next episode. अब चलें भारत की ओर। पहले अपडेट बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड का। केस शुरू हुआ था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से, फिर जुड़ी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सीबीआई। मीडिया भी शुरू में ठीक चल रही थी और महाराष्ट्र पुलिस ने शायद किन्हीं के इशारे पर या कहें तो पेंगुइन को बचाने के लिए डाइवर्सनरी टैक्टिक्स अपनाना चालू कर दिया था। अब रिपब्लिक टीवी, जिसने सुशांत को न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया था, उस पर केसेस की बौछार कर दी गई है ताकि न्याय की आवाज दब जाए। पर क्या 135 करोड़ लोगों की पुकार को आप खामोश कर सकते हैं? ये गलतफहमी किसी भी सरकार को नहीं होनी चाहिए। Only yesterday, 1,000 FIRs were registered on all reporters of Republic Media Network. Something like this is unprecedented. लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या केंद्र सरकार, होम मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इस सारे मामले पर दूर खड़ी रहकर देखती रहेगी, मूक दर्शक बनकर? संज्ञान लेना होगा, because the way things are progressing, it gives a clear indication as if the Maharashtra government is trying to hide something or protect something, protect someone important to the government. Share your thoughts. साझा करें अपने विचारों का। अब बात बिहार के इतिहास की। पिछले एपिसोड में हमने देखा था लालू के राज में कैसे गुंडागर्दी, अपहरण, हत्या सभी चीजों पर हावी हो गया था। सिर्फ हत्या, अपहरण और नरसंहार ही नहीं, भ्रष्टाचार के मामले में भी इस नेता ने पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। लालू जी ने जब शपथ लिया था तब अपने आप को एक दैवीय अवतार की तरह प्रकट किया था, जो लोगों का उद्धारकर्ता बनकर आया था। पर उद्धारकर्ता बने वह अपने पूरे परिवार को समृद्ध करने के लिए। पिछले अंक में जहां हमने उनके बड़े बड़े आपराधिक कारनामे को और अपराधियों के प्रश्रय के बारे में बताया था, इस एपिसोड में थोड़े में चर्चा करते हैं उनके बड़े बड़े भ्रष्टाचारों की और घोटालों की, जो बहुचर्चित भी है और प्रायः सबको मालूम भी है कि लालू उन्हीं आरोपों के सिद्ध होने पर जेल गए थे। सीबीआई के अनुसार उनके परिवार का हर व्यक्ति घोटालेबाज है। उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप, बेटी मीसा भारती, रागिनी और चंद्रा,
आरोपों की माने तो करीब 1000 से 1500 करोड़ की हेराफेरी उन्होंने सिर्फ अपने परिवार में की है और परोक्ष रूप से बाकी कितनों का फायदा किया है यह अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। यद्यपि वह अपनी बेनामी संपत्तियों से इनकार करते हैं, पर अपनी निर्दोषिता का कोई उचित प्रमाण आज तक पेश नहीं कर पाए हैं। अधिकतर घोटालों का सिलसिला तभी से प्रारंभ हो गया था जब वे रेल मंत्री थे। सीबीआई द्वारा किए गए जांचों में रेलवे घोटालों के जांच में यह पाया गया कि लालू ने रेलवे के रखरखाव और केटरिंग की व्यवस्था में पैसा बनाया। उन्होंने 2 निजी कंपनियों को ठेका दिलाया था, जिसके बदले में तेजस्वी यादव को पटना के प्रमुख क्षेत्र में जमीन आवंटित करके उसका मालिकाना हक दिया गया। 2000 में रेलवे बोर्ड में केटरिंग का प्रबंधन और लाभांश निजी कंपनियों को देने का फैसला किया। आईआरसीटीसी ने होटलों को केटरिंग व्यवस्था में शामिल करने का प्रावधान बनाया। 2006 में 2 कंपनियों को यह ठेका मिला, बीएनआर होटल रांची और सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड। सीबीआई ने इनके घोटालों को पकड़ा और सुजाता होटल के मालिक हर्ष कोचर और विजय कोचर को इसलिए दोषी पाया गया कि इन्होंने पहले जमीनें खरीदी और बाद में उन्हें एक और निजी कंपनी को बेचा जिसका नाम डिलॉयट कंपनी था और जिसके कर्ता धर्ता सरला गुप्ता थी, जो लालू के कैबिनेट के नेता प्रेमचंद्र गुप्ता की पत्नी थी। और उन्हीं लोगों के द्वारा पैसे का लेन देन लालू के परिवार में होता था। यह तब और साबित हो गया जब इसी डिलाइट कंपनी ने एक जमीन सहित पटना के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल के निर्माण का काम शुरू किया और तेजस्वी और राबड़ी देवी के नाम पर हस्तांतरित कर दिया गया। उसका निर्माण भी आरजेडी के विधायक ही कर रहे थे। हंगामा होने पर यह काम रुक गया। लालू के परिवार के अन्य सदस्यों पर भी जो घोटाले के आरोप हैं वह छोटे मोटे नहीं हैं, गंभीर ही कहे जाएंगे। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, चंद्रा यादव, रागिनी यादव सभी डिलाइट कंपनी के बड़े बड़े शेयर होल्डर हैं, जो भवन निर्माण, शॉपिंग सेंटर का निर्माण, जमीन खरीद फोक्त का काम करते हैं। बाद में इसका नाम बदलकर लालू राबड़ी कर दिया गया। अन्य आरोप जो चर्चा और सुर्खियों में रहे हैं उनमें से एक है कात्याल लिकर फैक्ट्री घोटाला। राबड़ी देवी के कार्यकाल में जब वे मुख्यमंत्री थीं, एक आइसबर्ग कंपनी को, जिसके मालिक ओम प्रकाश कात्याल और अमित कात्याल थे, एक शराब कंपनी पटना के पास बिहटा में लगाने का लाइसेंस दिया गया। उसके बाद इस प्रकरण में भी घोटाला शुरू हो गया पहले की तरह। इसी परिवार के दूसरे 2 सदस्य राजेश कात्याल और ए कात्याल ने एक फर्जी कंपनी एके इंफोसिस्टम खड़ी की और कुछ दिनों के बाद उसके तमाम शेयर और मालिकाना हक तेजस्वी यादव और चंद्रा तथा रागिनी यादव के नाम हस्तांतरित कर दिए गए। इसी कंपनी के करोड़ों रुपए के मूल्य के जमीन पटना के बाहरी क्षेत्रों में है, ऐसा कहा जाता है। एक और अन्य आरोप में एक कंपनी जिसका नाम एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड था, लालू परिवार के स्वामित्व में है। पहले इसने लालू परिवार को बिना सूद के 56 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया। यह मुंबई के जौहरियों की कंपनी थी। इस कंपनी ने 55 करोड़ की संपत्ति दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी और डिफेंस कॉलोनी में खरीदी थी, जिसके पूर्व मालिक अशोक बांठिया थे, जिन्होंने उस रिहायशी इलाके के तमाम शेयर तेजस्वी और रागिनी यादव के नाम ट्रांसफर कर दिए गए। सोचना यह है कि आखिर क्यों? अगर बीजेपी के आरोपों को माने तो राबड़ी देवी के शासनकाल में भी विभिन्न जगहों पर जमीन लेन देन का कारोबार हुआ था और अब यही लोग एक बार फिर से बिहार का नेतृत्व करना चाहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें, एक बार फिर से बिहार को लूटना चाहते हैं। चोरी और सीना जोड़ी। इसी तरह उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती पर भी KHK कंपनी, जो किन्हीं विवेक नागपाल की थी, उसने अपने तमाम शेयर मीसा भारती के नाम हस्तांतरित कर दिए। आखिर क्यों? घोटालों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि अगर गिनाने लगा जाए तो कितने एपिसोड निकल जाएं। अब हम थोड़े में चर्चा करेंगे लालू के सबसे बहुचर्चित चारा घोटाले की, जिसने उन्हें नेता से सजा याफ्ता मुजरिम बना दिया। दरअसल यह 1990 के पहले से ही शुरू हो चुका था, जब लालू मुख्यमंत्री बने भी नहीं थे। उनके बड़े भाई, जो पशुपालन विभाग में क्लर्क थे, उनके क्वार्टर में यह उन्हीं के साथ रहते थे। वहां उनकी मुलाकात RK राणा नाम के एक व्यक्ति से हुई, जो पशुपालन संबंधी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। इन दोनों में दोस्ती हो गई और उसी ने यह सुझाव दिया कि पशुपालन विभाग में घपला करने से आसानी से यह पकड़ में नहीं आएगा।
यह घोटाला आराम से चलने लगा और 1 साल के बाद लालू जब मुख्यमंत्री बन गए उस समय सीएजी को संदेह हुआ कि पशुपालन विभाग में कोई बड़ा घपला हुआ है। उसने बिहार के वित्त मंत्री सीएस दुबे को जांच करने को कहा और कुछ ही दिनों के बाद यह स्पष्ट हो गया कि मामला साधारण नहीं है, क्योंकि जब जांच अधिकारी पशुपालन कर्मचारियों पर छापा मारने लगे तो किसी के घर से लाखों रुपए, किसी साधारण चपरासी से घर से सोना बरामद होने लगा, किसी का फर्जी बैंक अकाउंट, सब बोतल के जिन्न की तरह बाहर निकलने लगा। जब इसमें निष्पक्ष न्याय की संभावना नहीं दिखी तो उस समय के विपक्ष के नेता सुशील मोदी ने एक जनहित याचिका दायर की और लालू को मुख्य आरोपी बनाया। अब लालू इसमें बुरी तरह फंस चुके थे। दरअसल राणा और इन्होंने यह सोचा होगा कि पशुपालन सरकार का एक छोटा महकमा होता है और इसकी तरफ शायद किसी का ध्यान नहीं जाएगा। मवेशियों की खरीद, उनके गौशाले का निर्माण, चारे का इंतजाम, कर्मचारियों का वेतन, दवाइयां और अन्य विभागों में घपला इन लोगों को आसान लगा होगा। इसमें करीब 150 करोड़ का घोटाला किया गया। यहां तक कि चारा ढोने के लिए जो वाहन इस्तेमाल किए गए वह ट्रक या ट्रैक्टर नहीं थे, बल्कि सीबीआई के जांच के मुताबिक उनके नंबर्स जो नोट किए गए थे वे स्कूटर और ऑटो रिक्शा के निकले। सभी जगह घोटाला पाया गया, 1% काम भी नहीं किया गया था। लालू इसमें बुरी तरह फंस गए थे। जब उन्होंने अपने आप को गले तक फंसा पाया तब उन्होंने देवेगौड़ा जी, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, से अनुरोध किया कि वह सीबीआई जांच में हस्तक्षेप करें, क्योंकि वह देवेगौड़ा जी के प्रिय पात्र भी थे और प्रधानमंत्री बनाने में लालू का बहुत बड़ा योगदान भी था। पर देवेगौड़ा जी ने यह कहकर अपना पीछा छुड़ा लिया कि सीबीआई एक स्वतंत्र संस्था है और सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। जांच चलती रही और वकीलों की वजह से इसे टाला जाता रहा। आखिर 21 साल बाद इसमें फैसला हुआ, लालू पर दोष साबित हुआ और इन्हें सजा हुई और रांची जेल भेजा गया। यहां एक बात और बताना चाहूंगा। Convicted in fodder scam cases, Lalu Prasad has been under treatment at Jharkhand's premier Rajendra Institute of Medical Sciences for more than 2 years, longest time for any non-coma patient to be in this hospital guarded by 42 cops. That is a record. कुछ एक दिनों तक यह जेल से ही पार्टी संचालन करते रहे और अब आकर इनके छोटे बेटे ने पार्टी का कार्यभार संभाला है और मुख्यमंत्री के दौड़ में शामिल हैं। इनको अवसर देना कहां तक ठीक होगा? बिहार की जनता 1000 बार यह सोचे, क्योंकि उन्होंने राजनीति की शिक्षा किसी अनुभवी निस्वार्थ राजनेता से नहीं पाई है। ये एक तिकड़मबाज, रीढ़विहीन, सिद्धांत विहीन परिवार के नई पीढ़ी के संवाहक हैं। ठीक पिता की तरह भांति भांति के पैतरे ये अभी से दिखा रहे हैं। क्या इन्हें मौका मिलना चाहिए? फैसला आपका। मेरा काम आप तक जानकारी पहुंचाना ताकि आप सही निर्णय ले सकें। बिहार के इतिहास से बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक नए उदयमान बिहार की, जिसका नेतृत्व किया नीतीश कुमार ने। क्या बिहार में बदलाव आया? क्या जंगल राज का अंत हुआ? इन सब बातों पर चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। अब बात 135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी की, मेरी पार्टी की। I have been repeatedly telling that in order for India to succeed, it must have a robust and strong opposition. This is true for all democracies. And the tragedy at this point of time in history of India is that the Congress is in crisis just when India needs a strong but constructive opposition. It is time for it to act and take what might once have been considered extreme measures. Nowadays, even family businesses are thinking of replacing incompetent family members with professional managers. That logic applies to political parties too. More so in a competitive marketplace. The best course of action would be to dump the failed Gandhis and hold elections for a leader to guide the party through turbulent times. This is the demand of time because
you have been given too many opportunities, but you have not learned. Rather, you do not wish to learn. How many launches and relaunches you need? And all that at the cost of a party established by the sweat and blood of millions of patriots. In the last episode, I had told, कम बोलो, पर जो भी बोलो तौल के बोलो. And here is what you said to the Prime Minister Modi. 6 बजे के अपने संदेश में कृपया राष्ट्र को वो तारीख बताएं जब आप चीन को भारत भूमि से बाहर निकाल फेंकेंगे. What does this mean? Do you know the history of India-China? Let me remind you what Nehru ji, our beloved Prime Minister, the first Prime Minister, had said on the floor of the House after 1962 war. क्या हो गया अगर हम युद्ध हार गए और मानसरोवर अक्साई चिन्ह का कुछ इलाका चीन ने हड़प लिया? वो जमीन वैसे भी बंजर है जहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता है. And this land we could not get back in Congress rule of over 60 years. Rather, we lost more. And for the first time in India's history, we are taking our land back. Learn about it. Be truthful and only then talk. And yes, I am reminded of another of your speech at Dubai, where you attributed that the true inspiration for Mahatma Gandhi's ahimsa was, among other religions, Islam. I do not wish to say anything on this issue, but just say, oh, and hang my head in shame. How could you forget Hinduism, which you try and practice every time during the elections? Do you have any idea that party nominations for Bihar elections have been sold? You talk where you don't need to talk, and where you need to talk, you remain selectively silent. An incident happened in a village in Punjab very recently, which has a Congress government in power, where a 6-year-old Dalit girl from Bihar, a migrant labor's daughter, was raped. Could you not have picked up the phone and spoken to the Chief Minister? In Madhya Pradesh, Kamal Nath calls an erstwhile colleague, an MLA who left the Congress party to join the BJP, as an item, and no disciplinary action was taken. And you marched to Hathras? What does this show? Close your eyes and think about it. You may get an answer. Or is it the way you see women's emancipation? How could you feel if someone calls any of your family members as an item? Think about it. You want and wish to lead the country, but are you capable? Don't do things just for photo ops. गंभीर बने. आज के लिए इतना ही. अगले एपिसोड में हम फिर चर्चा करेंगे बिहार के उदयमान इतिहास की, कांग्रेस पार्टी के आंतरिक कलह की, कांग्रेस पार्टी के बिहार चुनाव में टिकट बिगड़ी की, भारत के विदेश नीति की, कई और तथ्यों के साथ फिर आऊंगा और मिल बैठकर चर्चा करेंगे आपके अपने प्रोग्राम वीकली टेक्स में फ्रॉम न्यूयॉर्क. हाँ, अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले एपिसोड की सूचना आपको पहले मिल सके. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.